فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے BRS اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ اسمبلی انتخابات میں دولت اور شراب کی تقسیم کیے بغیر ہی عوام سے رجوع ہوں تاکہ عوام کا حقیقی فیصلہ منظر عام پر آئے۔ ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے میٹ دی پریس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ عوام کو مختلف ترغیبات اور لالچ کے بغیر فیصلے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں چیف منسٹر KCR اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR کو چیلنج کر چکے ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ کے تحت میڈی گڈا بیریج میں شگاف کا حوالہ دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ناقص تعمیری کاموں کے نتیجے میں پلرز غرقاب ہو گئے اور بیریج میں شگاف پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے ساتھ دورے کے موقع پر خود عہدیداروں نے بیریج میں شگاف کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ کل جماعتی قائدین کو پروجیکٹ کے دورے کی اجازت دیں تاکہ حقائق منظر عام پر آئیں۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے کانگریس امیدوار شیخ اکبر کو بعد نماز جمعہ مجلسی کارکنوں کی جانب سے عوام سے ملاقات سے روکنے کی کوشش کی گئی، جبکہ گزشتہ جمعہ کو بھی مسجد اکبری اکبر باغ کے باہر ان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ مسجد ایوبی مادنہ پیٹ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کانگریسی امیدوار شیخ اکبر مصلیان سے ملاقات کر رہے تھے کہ اچانک کارپوریٹر چھاونی عبدالسلام شاہد اپنے 20 تا 25 حامیوں کے ساتھ پہنچ کر ان کے خلاف ہنگامہ کرنے لگے اور مسجد کے باہر سے ملاقات پر بد زبانی کر کے گالی گلوچ شروع کر دی۔ شیخ اکبر کے ہمراہ اس موقع پر مظفر علی خان انچارج حلقہ ملک پیٹ و دیگر موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مصلیوں سے ملاقات پر اعتراض کر کے مجلسی کارپوریٹر نے اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس امیدوار پر حملے کی کوشش کی اور اس دوران کانگریس اور مجلس کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی کی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ گزشتہ جمعے کو کانگریس امیدوار شیخ اکبر نے مسجد اکبری میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مصلیوں سے ملاقات کی تھی، جہاں ان کے خلاف نعرے بازی کرنے کی کوشش پر مقامی عوام نے مسجد کا تقدس برقرار رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے مجلسی کارکنوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ مجلسی ایوبی کے باہر پیش آئے واقعے کی شیخ اکبر نے مادنہ پیٹ پولیس کے علاوہ DCP کمشنر اور متعلقہ انتخابی عہدیداروں کے علاوہ چیف الیکٹورل آفیسر و الیکشن کمیشن آف انڈیا کو تحریری شکایت روانہ کی۔ انہوں نے اس واقعے کے بعد ساتھی قائدین و کارکنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے انہیں خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ اکبر نے بتایا کہ وہ جمہوری انداز میں انتخابی مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی حرکتیں جاری رہی تو وہ اس کا قانون کے دائرے میں جواب دیں گے۔ تلنگانہ میں انتخابی عمل کے آغاز کے ساتھ ہی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے امیدواروں کے رقمی لین دین اور مالیاتی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی تیاری کر لی ہے۔ انتخابی مصارف کی نگرانی کے لیے الیکشن کمیشن نے خصوصی مبصرین کا تقرر کیا ہے اور امیدواروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پرچہ نامزدگی کے ادخال سے قبل اپنا نیا بینک اکاؤنٹ کھول لیں اور اسی کے ذریعے انتخابی مصارف کی تکمیل کریں۔ الیکشن کمیشن اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ مہم کے نتیجے میں امید کی جا رہی ہے کہ اسمبلی انتخابات میں امیدواروں کے لیے بھاری رقومات خرچ کرنا آسان نہیں رہے گا۔ انکم ٹیکس کے عہدیدار امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کو داخل کیے جانے والے حلف نامے پر نظر رکھیں گے، جس میں اثاثے جات، بینک اکاؤنٹ، افراد خاندان اور کرمنل کیسز کی تفصیلات پیش کی جائے گی۔ حلف نامے کی بنیاد پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ رقمی معاملات کی نگرانی کرے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ امیدواروں کے حلف ناموں کی نقل انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو حوالے کی جائے گی، جس کے تحت بینک اکاؤنٹس میں انتخابات سے عین قبل رقومات کے لین دین کا جائزہ لیا جائے گا۔ 2018 اسمبلی چناؤ میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کئی امیدواروں کے رقمی معاملات میں بے قاعدگیوں کے الیکشن کمیشن سے شکایت کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1821 امیدواروں نے 119 اسمبلی حلقہ جات کے لیے مقابلہ کیا تھا، جن میں سے 430 دولت مند امیدوار تھے۔ برسر اقتدار BRS کے 107 امیدوار دولت مند پائے گئے۔
पासपोर्ट दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई के लिए 4 व 18 नवंबर को खुसूसी मुहिम का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बी बालैया के मुताबिक पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र ने 2 हफ्ते के अय्याम में दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी। 4 नवंबर के अपॉइंटमेंट के लिए अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र और करीमनगर और निजामाबाद के अलावा खम्मम, नलगुंडा और वरंगल के पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में दरख्वास्तों की यकसुई की गई है। 18 नवंबर हफ्ते के दिन के लिए अपॉइंटमेंट्स आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 30 नवंबर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया, उनकी अपॉइंटमेंट 18 नवंबर को रीशेड्यूल किए जाएंगे, क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना में रायदही की तातील रहेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी गजा में मरने वाले मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाई है। साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान ने भी गजा के मुतासरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनिया को पैगाम दिया है। इरफान पठान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गजा में हर रोज़ 10 साल की उम्र के मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा ज़रूर इस बेहुदा कत्ल को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हों। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को टैग किया। तकरीबन 1 माह कबल फ़लस्तीन की तंजीम हमास ने इसराइल पर अचानक 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें मुतादिद इसराइली अफराद मारे गए थे, जिसके बाद इसराइल ने भी बदला लेना शुरू कर दिया था। फ़लस्तीन इसराइल के इस इंतकाम में सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल से मुल्हक़ा इलाके गजा में हुआ, जहां लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों छोटे बच्चे मारे गए। वहां रहने वाले आम लोगों की खुराक और बरक़ी काट दी गई, यहाँ तक कि अस्पताल पर हमला किया गया। इरफान पठान से पहले भारत की साबिक टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी गुज़िश्ता 1 माह से जारी इस कत्ले-आम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसका साथ दे रहे हैं, आपके सियासी ख़यालात क्या हैं, आप ख़बरों में क्या सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम सब कम अज़ कम 20 लाख से ज़्यादा मासूम लोगों की आबादी वाले शहर में रह सकते हैं? वो इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं कि उनके लिए खुराक, पानी और बिजली मुनक़ते की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के जरिए मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को सिंह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ईडी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा गया था, जो अब नाकारा एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जारी तहकीकात में एजेंसी के जरिए दर्ज किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज M.K. नागपाल ने 13 अक्टूबर को इस मामले में संजय सिंह को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। संजय सिंह ने ईडी के सामने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करते हुए कहा है कि माली तहकीकाती एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी की बुनियाद नहीं बताई है। ईडी ने 10 अक्टूबर को जज नागपाल से इस बुनियाद पर उनकी मजीद तहवील की दरख्वास्त की थी कि इस मामले से मुतालिक ईडी के कुछ खुफिया दस्तावेजात के हुसूल के जरिए के हवाले से उनका रवैया मुकम्मल तौर पर अदम ताउन वाला था। ईडी ने जिन दीगर बुनियादों पर संजय सिंह की तहवील की दरख्वास्त की थी, वो ये थी कि उन्होंने मज़कूरा नंबर और शरीक मुल्जिम अमित अरोड़ा के नंबर के दरमियान आने वाली कॉलों के सिलसिले में अपने मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को कबूल करने या दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। मजीद बताया था कि ताज़ा तरीन तलाशी के दौरान तकरीबन 200 GB डिजिटल डेटा बरामद हुआ है और इसका तज्जिया होना बाकी है। मज़कूरा डिजिटल डेटा के जरिए मुल्जिमान का सामने का काम भी मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सीनियर वकील रूबिका जॉन, जिन्होंने सिंह की तरफ से दलील दी, दावा किया कि ईडी के पास केस में उनकी हिरासत में तोसी की दरख्वास्त करने की कोई वजह नहीं है। माली तहकीकाती एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत
हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। बैनुल अक़वामी इमदादी सामान ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक शुमाली सेना में फंसे हुए हैं, जो गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को अशद ज़रूरी खुराक, कपड़े और अद्वियात पहुंचाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि WHO आलमी इदारे सेहत ने तबाहकुन हालात से खबरदार किया है। मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मैदबोली ने इमदादी कार्रवाइयों के जायज़े के लिए रफ़े गुज़रगाह का मुआयना किया। मैदबोली ने कहा, हम इज्तिमाई सज़ा की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं जो गजा के शहरियों पर जारी है। तनाज़ुआत के इस दौर के आगाज़ के बाद से सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और महकमा शहरी उमूर समेत रियासत के तमाम इदारों से शुरू करते हुए मिस्र अनैतिक मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर बमबारी का निशाना बन रहे हैं, जिनको इमदादी सामान पहुंचाने के लिए दर्जनों ट्रक रफ़े गुज़रगाह के मुख्तसर इफ्तिताह के इंतज़ार में रुके हुए हैं। दरियासना अब तक की सूरत हाल ने लोगों के ईमान को झटका पहुंचाया है। एक इमदादी रजाकार रईम अली ने कहा है कि हमने सोचा कि ये अमल तेज़ हो जाएगा और हमें गजा तक इमदाद पहुंचाने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत कम पेशरफ्त के साथ हम यहाँ 15 दिनों से मौजूद हैं। मिस्र किसी भी कोशिश से पीछे नहीं हट रहा है। 7 अक्टूबर को बहरान शुरू होने के बाद से सिर्फ 250 इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त दी गई है। ये तादाद रोज़ाना औसतन 10 ट्रक हैं। मिस्र इमदाद की इस सुस्त रफ्तारी का जिम्मेदार इसराइल को करार देता है। रफ़े गुज़रगाह के लिए 2 अतराफ से रास्ते हैं। मिस्री जानिब से गुजरने वाले तमाम ट्रकों का इसराइली हुकाम गजा तक पहुंचने से पहले मुआयना करते हैं। मिस्री स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के चेयरमैन दयार ऐशोन ने कहा, जो चीज़ आपको गजा में दाखिल होने से रोक रही है वो मिस्री हुकाम नहीं है। मिस्री हुकूमत इस वक्त सरहद से सिर्फ 1 मीटर के फासले पर खड़ी हैं, ताहम हमें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ाबिज़ फ़ौज से कोई ज़मानत नहीं मिलती। जब आप गजा में दाखिल होंगे तो कोई भी आपकी हिफाजत को यकीनी नहीं बनाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ मुक़द्दस जंग में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने टीवी पर अपनी पहली अवामी तकरीर की। उन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अचानक हमले की मदाफ़ियत की है। उन्होंने कहा कि हमास ऑपरेशन तूफ़ान अल अक़सा का फैसला 100% फ़लस्तीनियों का है। उन्होंने कहा कि हमास फ़लस्तीनी सरज़मीन और फ़लस्तीनी अवाम के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका इलाक़ाई मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को इसराइल में ज़लज़ला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास का फैसला दुरुस्त, दानिशमंदाना, जुर्रतमंदाना और सही वक्त पर था। हमास पर मुसलसल हमले के बावजूद एक भी फतेह हासिल ना करने पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर यरगमालियों को मुज़ाकिरात के जरिए ही वापस हासिल कर सकता है। उन्होंने अमेरिका को फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों और शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी जानिब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जुमा को होने वाले हमलों और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन के जुमा को इसराइल के दौरे के तनाजुर में हिज़्बुल्लाह के सरबराह का पहला अवामी खिताब तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसके अलावा लेबनान के लोगों ने नसरुल्लाह की टेलीविज़न पर तकरीर सुनने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। दारुल हुकूमत बेरूत का एक चौक हज़ारों लोगों से कचाकच भरा हुआ था। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की पहली तकरीर के दौरान फायरिंग भी हुई। जंगी माहिरीन को शुबा है कि उनकी तकरीर से हमास इसराइल जंग इलाक़ाई सतह पर फैल सकती हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया है कि 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली फ़ौज की जारहियत में अब तक 9,061 अफराद शहीद, जिनमें 3,760 बच्चे और 2,326 ख़वातीन शामिल हैं। गजा वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल क़दुरा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, इसराइली जारहियत में 32,000 फ़लस्तीनी शहरी को मुख्तलिफ ज़ख्म आए। ज़ख्मियों में भी 70% तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। अशरफ अल क़दुरा के बकौल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 कत्लेआम कर चुका है, जिनमें शहदा की तादाद 256 हो गई है। उन्होंने इंडोनेशी और अल शिफा अस्पताल में जनरेटर बंद होने के बाद सेहत के तबाहकुन बहरान पैदा होने की वार्निंग जारी की है। उन्होंने तमाम मुतालिका हलकों से अपील की है कि वो गजा में फौरी तौर पर अद्विया और ज़रूरी मेडिकल सामान भिजवाने के लिए रास्ते खुलवाएं।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।